Today we discuss the next article, quadratic equation. Quadratic equation. 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा quadratic equation. And what is quadratic equation? Complex and quadratic साथ साथ हैं ये. तो quadratic equation के complex roots है कुछ, उसलिए इस equation का use है आपके पास. Quadratic equation के अंदर an equation is a statement. An equation is a statement that either two expressions are equal or an expression is equal to 0 are equal or an expression is equal to 0 that is statement either two expressions are equal or an expression is equal to 0. That is, for example, x square plus 9x plus 7 is equal to 5x square plus x plus 2. This is a quadratic equation because obtained by equating two expressions, this and this. Or also 3x square plus 5x minus 9 is equal to 0 because this equation has been equated to 0. This is a quadratic equation. Then we define the term identity. What is identity? An expression involving equality and a variable is called an identity. If it is satisfied by every value of the variable. For example, x plus 1 का whole square is equal to x square plus 2x plus 1. This is an identity. As this statement is true for all values of x. That is, identity in x is satisfied for all values of x, where in an equation x is satisfied by some particular values. Identity के अंदर every value of x satisfy the given identity, but in case of an equation some particular values of x satisfied. Then roots of an equation. सारे कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में काफ़ी यूज होती है. Those values of the variable which satisfy an equation.
which satisfy an equation, or those values of the variable which makes both sides of the equation equal are called roots of the equation. Those values of the variable which satisfy an equation. For example, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. This equation being quadratic is satisfied by x is equal to 2 and x is equal to 3. x is equal to 2 पुट करते तो रिजल्ट 0 आता है, 3 पुट करते तो therefore 2 and 3 are the roots of the equation. This implies 2 and 3 be the roots of the equation. Roots of the equation. ये कहलाएंगे roots of an equation. Then quadratic equation. Quadratic equation क्या होगी? Quadratic equation. Quadratic equation. अब तक हमने डिफाइन किया what is equation, what is identity and roots of an equation. Then an equation in which the highest power of the variable is 2 is called a second degree equation or quadratic equation इसको कई बार हम क्वाड्रेटिक भी कह देते हैं. दैट इज ax square plus bx plus c is equal to 0 is not equal to 0. ABC or any constant a is not equal to 0. Then if a is equal to 0, then this is not an quadratic equation. क्योंकि a अगर 0 होगा तो कोफिशिएंट x स्क्वायर 0 हो गया, तो मेरे पास बचेगा bx प्लस c. नेक्स्ट आता है प्योर क्वाड्रेटिक. What is pure quadratic? An equation, second degree equation, if a second degree equation does not contain the term involving first power of the variable, or that is coefficient of x is 0, that is ax square plus c is equal to 0. This is pure quadratic. A is not equal to 0. That is coefficient of x is 0. Coefficient of x 0 आपके पास वो कहलाएगा आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 5x square plus 2 is equal to 0. This is a pure quadratic equation. Then next is solution of a quadratic equation. Solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation. Different methods आपने पढ़े हैं. That is, first is method of factors. मिडल टर्म को आप ब्रेक करते थे. फैक्टराइज, मिडल टर्म को ब्रेक कर दे
Then method of completing the square. Method of completing the square. Method of completing the squares. Then कि आपके पास यूजिंग द फॉर्मूला भी है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मेथड ऑफ फैक्टर्स 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी पढ़ा होगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिड्यूस करके और फिर सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है. इस तरह से हमने सॉल्व करके देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. देन नेक्स्ट आता मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स. देन नेचर ऑफ रूट्स, ये भी आपने पढ़ा होगा. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, आर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2. They are the roots of the quadratic equation. Then here d is equal to discriminant is equal to b square minus 4ac. Then different case arise. If b square minus 4ac is equal to 0, that is d is equal to 0, then roots are real and equal. Then roots are real and equal. That is each equal to minus b upon 2a. Minus b upon 2a. Second, if a, b, c are rational numbers, small a, b, c, and b square minus 4ac is positive and a perfect square, ध्यान देना जरा. ABC, coefficient of x square, coefficient of x and constant term, all rational numbers, and b square minus 4ac, b square minus 4ac is positive and a perfect square. Then the roots are rational and unequal. Then the roots are rational and unequal. डिफरेंट होंगे आपके पास. If a, b, c are real numbers, a, b, c are real numbers and b square minus 4ac positive and a perfect square, then the roots are real and unequal. डिफरेंट होंगे आपके पास और रियल होंगे. And if
b square minus 4ac is positive but not a perfect square, but not a perfect square, but not a perfect square. Then roots are irrational. Roots are irrational and unequal. तो नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके 4 कंडीशंस आपके पास, उसको फॉलो करवा देंगे. If the coefficients are rational number, then the roots occurs in conjugate pairs. ये नोट रखें आप. If in this case if the coefficients are rational numbers, coefficients, then the roots occurs in conjugate pairs, like 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Coefficients are irrational number, then roots do not occur in pairs. If the coefficients are irrational number, then roots do not occur in pair. In case of rational numbers, coefficients are in rational form or rational numbers, then the roots occur in conjugate pairs, that is 2 plus root 3 and 2 minus root 3. But in case of, if the coefficients are irrational numbers, then the roots do not occur in pairs, The next नोट पे आता है आपके पास, if b square minus 4ac is negative, then the roots are imaginary. Then the roots are imaginary. And complex conjugate to of each other. Complex conjugate of each other. ये कंडीशंस आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर, with real coefficients and complex, then always the roots occurs in complex conjugate pairs. The complex roots of an equation with real coefficients always occur in conjugate pairs. ये कंडीशंस के साथ हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. Then we discuss the example first. Then solve the equation or roots of the equation. Solve the following quadratic equation. Solve the following quadratic equation. स्पेशल कोई मेथड नहीं देगा, वो सिर्फ x के लिए सॉल्यूशन मांगेगा आपसे, उसको सोल्व करके देना आपने. देन we solve the result in the representation of complex representation. Then we write here 25x square minus 30x plus 11. First part है. Solve the following equation by using the general extension for the roots of a quadratic equation. Second,
Second is 2x square minus 2 root of 3x plus 21 upon 8 is equal to 0. And third is solve the equation x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 is equal to 1. Solve the equation or solve the following equation जनरल एक्सप्रेशन. बेसिक सा कंसेप्ट है, मिडल टर्म इजीली ब्रेक होती तो मिडल टर्म को ब्रेक कर ले आप, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाएं सीधा सीधा और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. वहाँ से इसका जो बेसिक कंसेप्ट हो कॉम्प्लेक्स के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर वो आइटा में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए उसने इस फॉर्मेशन को फॉलो किया यहाँ पे. देन गिवन है 25x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. दिस गिवन इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इज 25, कोएफिशिएंट ऑफ b इज माइनस 30, c इज 11. अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको सीधा मिडल टर्म को ब्रेक कर दूं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लें, या फिर हम इसको सॉल्यूशन के साथ ले जाएं और वहाँ से मिडल टर्म के साथ फॉलो करते जाएं, या फिर दूसरा तरीका है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर लें और वहाँ से रिजल्ट आ जाए. कंपेयर दिस, कंपेयर इट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हियर a is 25, b is minus 30, c is 11. देन x इज इक्वल टू डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पुट कर सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 25. तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस दिस माइनस दिस स्क्वायर रूट अपॉन 50. एंड वी राइट हियर 30 प्लस माइनस -200 square root upon 50. And x is equal to 30 plus minus -1 into 200 square root upon 50. And we write here 30 plus minus -1 square root 200 square root upon 50. But -1 square root is equal to iota. Then x is equal to 30 plus minus 5 root 4 iota upon 50. We write this result. Root 200. अब 200 5 root 8 of iota. Then write here 30, 5 कॉमन ले लें, 6 प्लस माइनस रूट 8 ऑफ आइटा अपॉन 50. ये 10 से कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया 6 प्लस माइनस 2 रूट 2 आइटा अपॉन 2 फिर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस रूट 2 आइटा अपॉन 5. तो रूट्स के आगे मेरे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 आइटा अपॉन 5 एंड 3 माइनस रूट 2 आइटा अपॉन 5. दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सिंपल यूज़ करें आप,
और आप उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते जाए तो आपके पास रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स वो कंडीशन आ जाएगी और उसी से हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट का सॉल्यूशन है, इक्वेशन है 2x² गिवन इक्वेशन माइनस 2√3x प्लस 21/8 is equal to 0. Also compare with the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 2, b is equal to minus 2√3, c is equal to 21/8. A is equal to 2, b is equal to minus 2√3, c is equal to 21/8. Therefore x is equal to minus b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 12, 8 से कैंसिल हो गया माइनस 21 अपॉन 4 and we write here 2√3 plus minus 9 upon 4 and this x is equal to 2√3 plus minus 9 upon 4 and this is equal to 2√3 plus minus root of this root of 9 upon 4 and x is equal to 2√3 plus minus 3 of iota upon 4 and we write it as 2√3 plus 3 iota upon 4 or 2√3 minus 3 iota upon 4. They are the solution, general solution for the quadratic equation. इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रियल नंबर वो आपके पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट में गिवन है आपके पास x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 120। देन नेक्स्ट रिजल्ट आएगा मेरे पास इस तरह के पेयर्स में आप ऐसे टर्म्स देखें कि कांस्टेंट को सम करें या डिफरेंस करें, कॉमन नंबर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिखा x प्लस 1 और x प्लस 4 इसको एक साथ लिख दिया और सेकंड पेयर में लिखा x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 120। 2 और 3 का सम 5 होगा, 1 और 4 का सम 5 होगा, इसलिए हमने इन पेयर्स को कलेक्ट कर लिया। 1 प्लस 4 5 मल्टीप्लाई किया x² 5x प्लस 4 x² 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब दोनों पेयर्स के अंदर एक कॉमन टर्म है उसको लेट कर दिया x² प्लस 5x इज इक्वल टू z। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया z प्लस 4 z प्लस 6 इज इक्वल टू 120 और ये हो गया z² प्लस 10z प्लस का 24 इज इक्वल टू 120 एंड देन वी राइट इट एज z² प्लस 10z प्लस 24 minus 120 is equal to 0 and we write it as z² plus का 10z 120 और 24 remaining is 6 120 negative minus then 96 is equal to 0 राइट। अब आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट आइडेंटिटी में जा सकते हैं, चॉइस आपकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करें, मिडिल टर्म को ब्रेक करें, एज यू लाइक। तो हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, यहाँ उस वैल्यूज को हम फॉलो करेंगे। पहले इसमें z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास आ गया z² प्लस 16z
-6z माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम करता हूँ तो मेरे पास 10z आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस का 96z²। यहाँ से z कॉमन ले लिया, z प्लस 16, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया, z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया z प्लस 16 कॉमन, तो z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर z प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -16 और z इज इक्वल टू 6। z की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। देयरफॉर हमने लेट किया है x² प्लस 5x इज इक्वल टू -16, और दूसरा हो गया x² प्लस 5x इज इक्वल टू 6। ये वैल्यूज हमने z की दोनों की पुट कर दी वहाँ से, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा वहाँ से। देन x² प्लस का 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया x² प्लस का 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया। a की वैल्यू 1 है, b 5 है, और c मेरे पास 16 है। b² माइनस 4ac, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज हो गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac स्क्वायर द रूट अपॉन 2a। तो यहाँ से आ गया x माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 64 अपॉन 2, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 64 25 9 5 2 3 39 माइनस square the root upon 2, and we write it as माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 39 अपॉन 2, and we write here माइनस का 5 प्लस माइनस आइटा रूट 39 अपॉन 2। ये x की दो वैल्यूज आई मेरे पास, -5 प्लस माइनस आइटा रूट 39 अपॉन 2, और यहाँ से इसके फैक्टर किए x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x टे कॉमन, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x प्लस 6, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और -6 आ गई आपके पास, तो सॉल्यूशन क्या बना आपके पास? x हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस आइटा रूट 39 अपॉन 2 1 और -6। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। 4 आंसर मिलेंगे आपको, क्योंकि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 मल्टीप्लाई करते तो x की पावर 4 आता है, तो 4 सॉल्यूशन मेरे पास x के आ जाएंगे। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद सेकंड टाइप आती है मेरे पास, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइटा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ। उसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देन सोल्व द इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज x² प्लस 3 माइनस आइटा ऑफ x माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 0। और सेकंड है मेरे पास, सेकंड जो रिजल्ट है वो मेरे पास2x² प्लस 3 प्लस 7 आइटा ऑफ x प्लस 9 आइटा माइनस 3 इज इक्वल टू। यहाँ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई मेरे पास, जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है मेरे को, उसमें गिवन टर्म नोट कर लें आप पहले, x² प्लस 3 माइनस आइटा ऑफ x माइनस 3 आइटा। इसको कंपेयर करें आप, a x²
bx plus c. Here a is equal to 1, b is equal to 3 minus iota, c is equal to minus 3 iota. x की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर minus 4ac square the root upon this. डायरेक्ट आइडेंटिटी में चला गया मैं. सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, कोई पर्टिकुलर केस नहीं पूछेगा आपसे. 3 माइनस आइटा प्लस माइनस 9 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 6 आइटा प्लस 12 आइटा स्क्वायर द रूट अपॉन. A is 1, B is 3 minus iota, C is minus 3 iota. Minus B plus minus B square minus 4AC. Then iota square is equal to minus 1. X हो गया मेरे पास minus 3 minus iota plus minus 9 minus 1 plus 6 iota upon 2. And we write it as minus 3 minus iota plus minus square root 8 plus 6 iota upon 2. Then we find the square root of 8 plus 6 iota का square root find out करना पड़ेगा. But we know that 8 plus 6 iota square root is equal to a plus iota b. लेट कर लिया मैंने. तो मेरे पास पूरा क्वेश्चन बन गया. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस आइटा प्लस माइनस a प्लस आइटा b अपॉन 2. ये पुट कर लिया मैंने. अब a प्लस आइटा b की वैल्यू मैं फॉलो कर दूंगा यहाँ से. तो मेरे पास पहला स्टेप बना 8 प्लस 6 आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर. उसके रिंग बोथ साइड कर दिया. यहाँ से हो गया 8 प्लस 6 आइटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ऑफ ए बी. और इसको मैंने लिख दिया 8 प्लस 6 आइटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी. देन रियल part is 8 is equal to a square minus b square. Imaginary part is 6 is equal to 2ab. Equating real and imaginary parts. But we know that a square plus b square का whole square is equal to a square minus b square plus 2ab का whole square. ये आइडेंटिटी है मेरे पास. तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 64 प्लस 36. और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर ऑफ दिस. और यहाँ से आ गया पॉजिटिव रियल नंबर इज इक्वल टू 10. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट 100 10 हो गया आपके पास. देन सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड. तो मेरे पास रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ऑन एडिंग तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. मैंने a की वैल्यू प्लस 3 लिया से. पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड. तो मेरे पास हो गया 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू बी. तो b मेरे पास 1 आ गया. तो देयरफॉर 8 प्लस 6 आइटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस आइटा बी 3 प्लस आयोटा बी. ये सॉल्यूशन आया मेरे पास. इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ गिवन रिजल्ट पे. तो x आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू -3
माइनस आइटा प्लस माइनस 3 प्लस आइटा अपॉन 2। एक्स हो गया -3 प्लस आइटा प्लस 3 प्लस आइटा अपॉन 2, और दूसरा हो गया -3 प्लस आइटा -3 माइनस आइटा अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2 आइटा अपॉन 2, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई, कैंसिल हो गया माइनस पे, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ -3, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -6 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 एंड आइटा। ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास x का। यहाँ से आइटा आ गया और यहाँ से -3 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्क्वायर रूट निकालना है आपने। यहाँ से 8 + 6 आइटा स्क्वायर रूट की टर्म को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे रिजल्ट आ जाएगा। सेम कंडीशन सेकंड सॉल्यूशन पे होगी। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास, उसका सॉल्यूशन भी इसी पैटर्न पे चलेगा। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, 2x² माइनस 3 + 7 आइटा ऑफ x प्लस 9 आइटा -3 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन बी क्वाड्रेटिक। देन कंपेयर this equation ax² bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to -3 + 7 iota, c is equal to 9 iota -3. Coefficient of x² is a, coefficient of x is b, constant term is c. Then x is equal to -b plus -b square माइनस का 4ac स्क्वायर द रूट अपॉन 2 × 2। यहाँ से उसी तरह का केस बनता जाएगा। स्क्वायर रूट की टर्म अंदर आ जाएगी, प्लस माइनस 9 प्लस 49 आइटा स्क्वायर 42 आइटा माइनस 72 आइटा और प्लस 24 अपॉन 4, एंड x इज इक्वल टू 3 + 7 आइटा, 3 + 7 आइटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 49 प्लस 42 आइटा 2ab माइनस 72 आइटा और प्लस का 24 अपॉन 4, एंड x इज इक्वल टू 3 + 7 आइटा प्लस माइनस, लाइक टर्म को कलेक्ट करें आप यहाँ से, माइनस का 40 और प्लस का 24, माइनस का 40 प्लस का 24, देन रिमेनिंग इज -16, -16 -30 आइटा स्क्वायर द रूट अपॉन 4। अब इस टर्म का स्क्वायर रूट चाहिए मेरे को। लेट -16 -30 आइटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 3 + 7 आइटा प्लस माइनस a प्लस आइटा b अपॉन 4, and we write it as -16 -30 iota is equal to a plus iota b का whole square. -16 -30 iota is equal to a square b square 2ab, and we write it as -16 -30 iota is a square minus b square, because iota square is -1 plus 2 iota ab. Then real part is -16 is a square minus b square. Imaginary part -30 is equal to 2ab. Then we know that डायरेक्ट भी यूज कर सकता था मैं, बट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? -16 प्लस 2ab -30। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 256 प्लस दिस, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। राइट? यहां तक कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। राइट? देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 होल स्क्वायर। अब 1156 का स्क्वायर रूट निकालें आप पास से। 1156 स्क्वायर द रूट, देन 3 2 देन 6 क्या फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डाला है? एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हम निकालते हैं यहां से, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है? देन राइट द फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वन 156 इसके रूट फॉलो कर ले आप, आइडिया होगा आपको। 3 3 9 2 5 6 देन मल्टीप्लाई कर लें 6 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड पुट in the given expression, then solve for x। इसको आप कंप्लीट करें, बिकॉज इससे आगे जो है ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, ए और बी की वैल्यू निकाल लें, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जनरल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में लेके गया है वो, उस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है इसको, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देन यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, कोई डाउट है तो फिर आप कल डिस्कस करें।